दो चार गालां कड्डियां मोटियां मोटियां तो समझ लो फिर टॉपिक हो गया कि मिर्ज़ा कादियानी दियां गालियां। समझे कि नहीं समझे? फिर टॉपिक वो हो जाएगा। अगर उसने आके कोई कुरान दी इसकी बात शुरू कर दी तो फिर टॉपिक ये हो जाएगा कि जनाब बताओ कि मिर्ज़ा कादियानी ज़न्नी था, शराबी था, ये कुरान या हदीस में कहाँ पे लिखा हुआ है कि मसीह मौद जो होगा वो ज़ानी होगा और शराबी होगा? फिर टॉपिक वो हो जाएगा। हाँ जी। और वो जो हज़रत मिर्ज़ा साहब बानो रज़ाई वाली से टांगे दबवाया करते थे, हाँ जी, टांगे दबवाते थे, तो फिर टॉपिक ये हो जाएगा कि दसो एक कादियानियों केड़ी कुरान की आयत या हदीस च लिखे है कि मसीह मऊद कुड़ियां को लत्तां दबवाए करेगा। हाँ जी, फिर टॉपिक वो हो जाएगा। लो जी, पहले कॉलर आए हैं, देखते हैं कौन है। और आ गए तो छा गए, अली भाई आ गए। भाई अली भाई आए जी अली भाई। जी सलाम अन तबाउल खुदा, कैसे हैं जी अल्लामा साहब? ठीक है हाँ आप? जी, बस सलाम जनाब, शुक्र है अल्लाह का। जी जी उम्रा फरमाए करके आए हैं जनाब, क्या टॉपिक है माशाल्लाह, फिर? उम्रा मुबारक हो जी आपको। जी खैर बारक। दुआ करनी थी, अल्लाह आपको काबे के सामने खड़े होके दुआ करनी थी, अल्लाह आपको हिदायत दे। हाँ नहीं, मैंने दुआ की है। जी मैंने की है, कहा मिली है काबे की हिदायत? नहीं, मैंने दुआ की है कि अल्लाह ताला मिर्ज़ा गुलाम कादियानी काने कज़ाब को इंसान बना दे। ओ हेलो, ओ हेलो, तू हैगा कज़ाब? वो तेरी है। आराम ना टॉपिक गल बन कर। गया ना। नीचे नीचे पूछ रहे थे, हुण पता चलिया जे की ना सी तुहाडे यॉर्की भाई पुछदे तो फिर टॉपिक की है, तुसी टॉपिक बन गया कज़ाब जी। हो भैन, भैन तुसी कज़ाब हो, नहीं, वड्डे कज़ाब हो। अच्छा, हाँ जी, ओके छोटे मोटे कज़ाब नहीं ओके हो, वड्डे कज़ाब हो, अल्लाह दी रहमत नाल। ओके, थोड़ा जा ਉਹ समझाओ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਗਾਰੇ ਹੀਰਾ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। और तेरे दिल दे विच खोट है, तू ते मुसलमान ही कोई नहीं। जनाब मसीह मौत ते ईमान लैके आ ताकि तू मुसलमान हो सके, तेरी बख्शिश होवे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा कज़ाब आदमी। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸਾਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ 50 ਜਿਲਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 50 ਜਿਲਦਾਂ, ਤੇ ਬਰਾਹੀਨੇ ਅਹਮਦੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 50 ਜਿਲਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਮੁਖਤਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲਾਤ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 5 ਰਸਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ, 5 रसाले छोटे छोटे लिख के कहने लगा कि 5 और 50 में सिफर का ही फ़र्क है, लिहाजा वो जो मैंने 50 किताबों के पैसे लिए थे ना, वो मेरे ज़ाती मसारफ में खर्च हो गई हैं, वो मेरे ज़ाती मुझे ज़रूरत थी तो उसमें खर्च हो गए हैं, तो लिहाजा पैसा हज़म, हाँ जी, ते दौड़ जाओ। 5 किताबां बस 5 50 बराबर है, सिफर का ही फर्क है।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਜਲਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਗੱਲ ਅਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੋਲ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤਹਮੁਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਅੱਜ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਝੂਠ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਪਾਤੇ ਨੇ जी। 5 और 50 में सिफर का फर्क है, पैसे दिए दगा भी कहने दिते पैसे, किसी एक बंदे की गवाही लैके आ और तेरे कहना चोर होना। और भाई अदालत च ट्रायल चलिया, अदालत ने चोर किया, डिक्लेयर होया, तू तो सर्टिफाइड चोर है, लोगों के पैसे खा के उम्र चले गया। मेरा 4000 खादा है, तू सारे जान दे 4-4 खा गया। मेरे को 4000 मंगाया, एक किताब नहीं भेजी, मैं आप जायज कैश कराया। कैसा मरदूद आदमी है, गो संदे है। और भाई मेरे पैसे मोड़, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। और मेरे पैसे मोड़। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੋਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਓਹੋ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਧੀ ਕਿੰਜ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ ਕਿ ਦਲੀਲ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਕੈਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅਸਲ ਸਕੈਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 60 ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਦਰਜਨ। ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਉੱਜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਅਸੂਲ ਗੱਲ, ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੋਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਔਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਬੂਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਵਾਵਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਕੈਨ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਤੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਕੈਨ, ਇਹ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸਕੈਨ, 6ਵਾਂ ਤੇ 7ਵਾਂ, 8ਵਾਂ ਤੇ 9ਵਾਂ, 10ਵਾਂ ਤੇ 11ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ 12ਵਾਂ। 12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲਿਖ ਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਯਾਰ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਦੌੜ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਖੱਪ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦਲੀਲ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਲੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦਵੋ ਨਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਹਦੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੂੜਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੂੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਚੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਜੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਮਝ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ
ਉਹ ਵੀ ਛਪ ਜਾਏਗੀ, ਜਲਦੀ ਛਪ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲਿਖ ਛੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ, ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੋਂ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਕ ਲਾਂ, ਜਿਲਦ 21, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਜ਼ਰਾ, 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਜੇ। ਲੋ ਜੀ, ਜਿਲਦ 21 ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 21 ਤੇ ਸਫਾ 9, ਜਿਲਦ 21 ਤੇ ਸਫਾ 9, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਲਦ 21 ਤੇ ਸਫਾ 9, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਬਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਪढ़ लो सफ़ा 9 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪढ़ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, सुनिया जे। पहले 5 हिस्से लिखने का इरादा था, मगर 50 से 5 पर इक्तफा किया गया, और चूंकि 50 और 5 के अदद में सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है, इसलिए 5 हिस्सों से वो वादा पूरा हो गया, वो वादा पूरा हो गया। रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफ़ा जनाब 9 जे। और एवे दिबाचा बराहीने अहमदिया हिस्सा 5, दिबाचा ए वेखो, ए उत्ते लिखिया। ये हुई चीज़ मैं अपनी किताब मिर्ज़ा कादियानी चोर दे विच जिक्र कीती और स्कैन लाए। है हिम्मत किसी कादियानी दे कोल इहदा जवाब देवे? मैं कलर चुक लिया भाई। ओए तेरी खैर लैना ही लग गई भाई, अज ते लैना ही लग गई ने। लो जी, फिर वारी वारी आ जाओ भाई। एक एक कलर नूं मैं चुकांगा, पहले एक नाल गुफ्तगू होएगी, ओ दौड़ गए। अच्छा जी, अगला कलर जी, जनाब अफजाल साहब आ रहे हैं, अफजाल साहब आ रहे हैं जी। अफजाल साहब, हाँ जी जी जनाब। मुबशर साहब ठीक ठाक? शुक्र है। की जवाब ਇਹਦਾ ਕਿ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 5 रसाले लिख के हजरत मसीह साहब ने फरमाया कि 5 और 50 में सिफर का फर्क है, ते लिहाजा वादा पूरा हो गया। अच्छा, मुर्तजा पछाण तो हम ले आई होना हम। नहीं, मैं नहीं पहचानिया। जरा सवाल का जवाब दे रहे हो तो फिर पहचान लांगे। हाँ जी, जवाब मैं देना। मैं मिर्जा साहब ने तेरे वांगू पैसे मंगता नहीं लोगों को, जिस तरह तू मंगते नहीं सन। नहीं मंगिया बगैर ही दे छड़े सन लोगों ने। किताबां लिखना तो तुहानू पता है, तुहानू पता भी किस तरह लिखियां जांदियां ने। बगैर ही लोगों ने 50 पैसे किताबां दे पैसे जमा कराए सन। मैं दूसरा मदरसा खोलिया तो ਉਹਦਾ भी खर्चा पानी है नहीं है, बगैर ही जमा कराए ने। एक नवी मेनू अच्छा गल सुनो कि हजरत मसीह साहब ने लोगों ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ बगैर ही पैसे जमा कराए सन जी। अच्छा, मेरा जवाब खोला मिर्जे दी किताबां, जो मेरा बात खोला फिर मिर्जे दी किताबां गल सुन है, खोला नहीं दसो। काने ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੋਂ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਏ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜੇ ਜਵਾਬ ਬਰਾਹੀਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਹਿੱਸਾ ਅਵਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਟੋਰਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿਓ, 6 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਟਕੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਟੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਸੁਣਾਓ ਇੱਧਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਲਿਆ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ। तेरा मेरा फैसला ये होना है कि तू अपने आप को साबित करना है कि मैं इल्हामी तिजारत नवी किताब आ रही जे मेरी, जिथे मिर्जा कादियानी नू वहियां नाज़िल हो रही, इल्हाम हो रहे ने 1-1 रुपये दे, 2-2 रुपये दे। वो गल तो सुन, 1 रुपये का इल्हाम हो गया जी, फलां नवाब की तरफ से 1 रुपया आने वाला है। ओ मुफ्त बात तो सुन यार, वो तो पूरी जिंदगी मंगदा रहा है तुहाडा मसीह, कटोरा ले के खलोता रहा है। मोची गल तो सुन यार,
तेरी है मोची गल तो तू अपने आप को सैयद नहीं साबित कर सके ना अजे तक। एक मिनट ठहर सैयद साबित रुक ठहर जा बंदे दा बच्चा सैयद साबित कर डबल टैप करो रख के डबल टैप करो मुंडियो मोची ब्राड हिलदी जे पई ब्राड हिलदी है पई डबल टैप करो जरा मोची ओ तेरी ओए ओ मोची मंगता ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਜ਼ਲ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मोची ਹੈ ਭਾਈ ਓਏ ਅਫਜ਼ਲ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ नहीं मैं इन्हें पूछन दिया मुबशिर साहब नु ਆਹੋ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈयद ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਲਵੀ ਝੂਠਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਓਏ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਮੋਚੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੋਚੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗ ਹੈ ਇੰਜ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਮਾਨ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਅਫਸਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਜਿਲਦ 2 ਤੇ ਸਫਾ 23 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਬਾਰਤ ਜੇ ਕਿ इनमें से एक सैयद है जो मिर्जा साहब हैं ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੈयद ਸੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸੀ ਚੂੜਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਚੂੜਾ ਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚੂੜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈयद ਕਿਹਾ ਉਸਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਮੌਜੂਆਤੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਚੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚੂੜਾ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਨਹੀਂ ਮੁਗਲ ਚੂੜੇ ਸੈयदा ਨੂੰ ਜੱਫਣ ਇਹ ਵੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮੋਚੀ ਤੇ ਸੈयदा ਨੂੰ ਜੱਫਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਤੇ ਸੈयदा ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈयद ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈयद ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੈयद ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਫਤ ਕੱਟ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੂੜਾ ਸੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਚੂੜਾ ਓਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੂੜਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਚੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਮੁਖਤ ਓਏ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈयद ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਸੈयद ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਆਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈयद ਸਾਬਤ ਕਰ ਉਸਮਾਨ ਨਪਲੇ ਸੋਏ ਉਸਮਾਨ ਨਪਲੇ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਪਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਪਣਾ ਓਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਓਏ ਨੱਪ ਕਿਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਲਿਆਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਲਿਆਣੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਾ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਹੁਣੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਸਕਰਾ ਨਾ ਪੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਤਸਕਰਾ ਨਾ ਪੜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਨੱਪਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਅਸੂਲ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈयद ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੈयद ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਸੈयद ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹਵਾ ਟੈਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਬੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਜ਼ਾਈ ਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਬੀਬੀ ਕੇਲੇ ਲੈ ਹੁਣ ਬਗੈਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਮੋਚੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਿਆ ਕਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਤੂੰ सही करो सर साबित कर तू सही है मुझे लग रहा है ये अफजल साहब जो है ना ये वही है वो जिनकी वो एक औरत के वायबरनम के कतरे जिन्ना दी बाजी कटी थी
ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਆਹੋ ਉਹੀ ਨੇ अच्छा उठे इन्होंने निशा जी वो मोची रहम याद में दस भाई बरनम के कतरे डाले थे, वो इसकी नानी थी या दादी थी अफजल की? ओ मोची 10000 ਇਹਦੀ ਮਾਂ अच्छा जी कितने ने भाजी ਮਾਂ- मोची यार साबित कर अपने आप सैयद की है तू क्यों अपना असूल ते तू आप बनाया है असूल ते तू आप बनाया तू क्यों हराम दा बनांदे आ ये दस क्यों हराम दा बनांदे ਓਏ ਹਰਾਮ ਦੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਓਏ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਰਸਾਲਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਚੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ हराम ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰਾਮੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰਾਮੀ अच्छा तू ਇਹ क्या मैं मोची ਹਰਾਮ ਦੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਮੋਚੀ ਹੈ? 145 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੋਚੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੈਯਦ ਨਾ ਬਣ। ਠਹਿਰੀ ਉਹ ਰੁਕੀ ਨਾ ਸੈਯਦ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰਾਮੀ ਇਹ ਵੇਖ ਤੇ ओ ਸਹੀ सैयद ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਲਾਲੀ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ओ सैयद ना बन ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੜੀਆਂ ਨੇ मैं पुत्र तू वो तो तू हां खड़े उस्मान को जो बहाना है प्यार। जिंदा ना तू अपने आप को साबित करना तू तो ऐसे ਓਏ जिंदा ना तू साबित ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਆਟਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਆਟਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਆਟਾ ਓਏ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਲੋਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਲ ਲੋਇਆ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਲੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਲੋ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ खाके पापड़ आ देख भाई समझो भर मुट्ठी भर आटा एक बर्तन में जमा कराना जिथे अपना भी मामूल आते बना ले हैं, आटा भी ले लो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗਣ कहते आटा करो आटा भी ले आओ यार गल ए मसीह मौद नु आटा भी आके दो आ दो भाई ए तू दो मदद करना है दस भी तू जे सैयद है दसे ਮੈਨੂੰ ओए मुख्तसर नोट सुनो मुख्तसर नोट ते करो कहंदा कुड़ियां आटा भी घरों ले आके सानू दे देन मसीह मौद आटा खोर चंदा खोर आटा खोर यार ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੈयद ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ शाह जी आटा भी मंगदा सी यकीन करो इन्हें ते ओ जड़ियां कोई रिसाला आना कोई किताब आनी कोई इन्हां ने कोई सफा छापना इन्हां ने कहना भाई ए खरीदो ते चंदा दो सानू ए आटा भी मंगदे सी ਸੈयਦਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਐਡਾ ਚੰਦਾ ਖੋਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਆਇਆ ਭਰਾ ਸੈयਦਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭਰਾ ਕੰਜਰੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੈयद ਮੇਰਾ ਮਰ ਉਹਦੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਐਡਾ ਚੰਦਾ ਖੋਰ ਸੀ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਐਡਾ ਚੰਦਾ ਖੋਰ ਉਹ ਸੀ ਯਾਰ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਵੋ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ 50 ਔਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਰਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੌਜੂ ਰੱਖੋ ਜੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸੈयਦਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਅਜੇ ਸੈयਦਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੈयदाਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮਰਜ਼ਈਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਸੈयदाਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੈयदाਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਨੱਠ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗ ਨੱਠ ਗਈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਨੱਠ ਗਿਆ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ ਹੁਣ ਓਏ ਅਫਜ਼ਲ ਨਸੀਨਾ ਯਾਰ ਨਸੀਨਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਾ ਐ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਆਟਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਫਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਕੈਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਮੰਨ ਲਿਆ कैसा हसी चेहरा मुफ्ती दा अफजल एक मिनट ऐवे ये देखें साहिबान ये रूहानी खजाइन है और तो इसकी ये तू पहली क्यों जिल्द है और यार तू पहली क्यों जिल्द नाचना? है और तू क्यों- ब्राहीन अहमदिया का तू पहला क्यों हिस्सा ये देखें ब्राहीन अच्छा, अहमदिया का तू- पहला हिस्सा मोटे यार एक मोटे निजी जी गल है। मोटे मोटे हरूफ मुबशिर साहब मुबशिर साहब एक निजी जी गल है मुबशिर साहब निजी जी गल है कहने लगा कि ये ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਉਧਰ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ पुत्र बन मिर्जे कादियानी ने कहा था मैंने इस्लाम की हमायत के अंदर किताब लिखनी है पहले उसने ये ड्रामा किया कि ओए बंदे दा पुत्र बन गल करन दे बंदे दा पुत्र बन गल करन दे चोर है तू गल करन दे ना ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਰ मिर्जे बंदे दा पुत्र बन माइक म्यूट कर अच्छा जी मिर्जे कादियानी ने कहा मैं इस्लाम की हमायत है नुसरत दे विच ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਔਰ ਨੁਸਰਤ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਲਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਾ ਜੋ ਇਥੋਂ
ਹੈ ਦੱਸ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੁਸਰਤ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਕੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਔਰ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੂਲ ਵੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਭੌਂਕਣ ਨੂੰ ਜਾ ਪੈਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਕੁੱਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਔਰ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਔਰ ਨੁਸਰਤ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਵਾਏ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲਾਲ ਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਾਰਮ में खर्च हो गए मेरे ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਾਰਮ में खर्च हो गया मिर्जा का यानी कहने ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਾਰਮ में खर्च हो गया ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਲਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰ ਲਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਛਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 50 ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ 50 ਲਿੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ 50 ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ 5 ਲਿੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮਾਰਨਾ ਲਿੱਤਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮਾਰਨਾ ਲਿੱਤਰ 50 ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ 5 ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ 5 और 50 ਮੈਂ ਸਿਫਰ ਕੇ ਫਰਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਪਾਲਿਆ ਲੰਮੇ ਹੋਏ ਪਾਲਿਆ ਸੁ ਲੰਮੇ ਪਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਮਾਰੋ ਛਿੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਟੇ ਖੋਰ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਖੋਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਲਾਲੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਜਲਾਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਾਰਸੀ ਲਸਨ ਹੈ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਬਰਲਾਸ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਚਵਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਲਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਮੁਗਲੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋ ਪਿਆ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਸ ਗਈ ਇਹ ਹਲਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ की निशानी है कि वो सीधी राह नहीं चलता ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਲਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜੀਏ ਬਸ ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਭਾਈ ਇੰਜ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਪਾਓ ਕਾਲ ਅਲੀ ਡੋਲਫਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਗਰ ਨਾ ਕਾਲ ਲੈਣਾ ਕਾਲ ਪਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲੋਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹ ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ ਬਰੋਜ਼ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ ਬਰੋਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰਿਆਸੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਨਬੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਐਡਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਚਾਰ ਜਿਹਾ ਨਬੀ ਆ ਗਿਆ हेलो जी सुनो भाई सुनो ब्राहीन मकतूबात अहमद जिल्द अव्वल सफ़ा 307 मकतूब नंबर 3 मिर्जा कादियानी अगे लोगों ने सवाल किया कि पैसे तेरे किथे गए ने 50 किताबां दे 50 किताबां दे पैसे 10 किथे ने
मिर्ज़े कादियानी ने किया, इस कसूर का खुद मोतरिफ हूं कि जो कुछ किताब की कीमत में आया वो खर्च होता रहा, मगर ये बात कि खुदा ताला के नजदीक मेरे वो मसारफ किस रंग में है और नुक्ता चीनियों की नजर में किस रंग में है, इसमें बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि गुजरी हुई बात को तूल देना कुछ फायदा नहीं और मेरी राय नाकिस में आपका इस फिक्र में पड़ना ला यल्जम है। आंदा नहीं मेरे को सवाल ही ना करो, वो गल पुरानी हो गई है, 25 साल पुरानी गल है, 25 साल पुरानी गल है, ते तुसी अज मेरे को पुछदे हो पे कि 25 साल पुराने तू 50 किताबां दे जेहड़े पैसे इकट्ठे किथे नो किथे नहीं, आंदा नूं तूल ना दिओ, तूल ना दो है। हवाला वेखो, मकतूबात अहमद जिल्द अव्वल सफा 307 है जी। उस्ताद मतलब वो भी तो बताया ना कि वो हाथी के पाँव जितना हरफ लिख के तो वो किताब जो मुकम्मल करने की कोशिश मैं अजे हुण आया है, थोड़ी देर पहले अजे हुण आया है। ए वेखो मोटे मोटे हरूफ ते मोटे मोटे अल्फाज लिख के ते मगरू लाया, ए वेखो ये हाथी के पाँव जितने बड़े बड़े लफ्ज लिखे हुए। अगले कॉलर नु चुको यार, की होया है कॉलर नु चुको, अपने ही ने बंदे विच सारे ज्यादा, इस लिए ओ चलो जेड़े भी है ने फिर चुकी जाओ, फिर अल्लाह दी आसरे थे मैं चुक रहा। अच्छा बहू जी भी अली नु मैं डबल चुक टैप करो भाई, डबल टैप करो, शेयर करो भाई ब्राड, डबल टैप करो भाई, पार्टी शुरू हो गई है भाई, पार्टी शुरू हो गई है। सुहेल लाइव चला रहे हैं यूट्यूब पे जी मुफ्ती साहब, बेहतरीन जा रही है। ओ बेहतरीन, सही है। हाँ भाई, वालेकुम शादी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम शाहज़ेब मियाँ, की हाल है? शुक्र है अल्लाह का शादी, दुआएं हैं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। अगले दिन देखिए यूट्यूब पे सेल की डिबेट जो मर्जियों से किया सेल ने, तो मैं कहता हूँ फटे चुकता है। सेल बहुत बड़ी जबरदस्त सेल भाई आपकी, सेल लुकी हुई शहर है, अल्लाह मंजूर करे। नहीं बहुत सेल तो जबरदस्त जानते नहीं है, बहुत जबरदस्त डिबेट थी, बहुत जबरदस्त डिबेट। मर्जियां नु फा पाता है, उन्हां थल्ले लाता है नु। अली राजपूत आए हैं। ये जितने भी दोस्त अहबाब हैं सारे जो है ना मुफ्ती साहब के। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? ठीक है जी, वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी करो गल यार, खामोश हो गए हो, खामोश ना बैठो उत्ते, एक दी गल टुटदी है दूजा गल जोड़ के रखे। अच्छा उस्ताद मतलब अभी उस्मान भी पिछली ब्राड पे माशाल्लाह वाले पेश कर रहे थे कि ये मिर्जा तो वो था ही ना, इसने नबूवत का दावा भी किया हुआ था। सिग्नल की प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने म्यूट लगा लिया था, उनके सिग्नल की प्रॉब्लम। जी को आसिफ साहब आए हैं, अगर उन्होंने बात करनी है तो सारे आने हैं, म्यूट ला जाने। हाँ तो मैं ये अर्ज कर रहा था जी। वालेकुम भाई शाहज़ेब भाई तुसी थल्ले बैठो, मेरी गल सुनो, तुसी थल्ले बैठो, नेट खराब है ते फिर डिस्टरबेंस हुंदी है ते थोड़ी देर तक आ जाए, जदों ना नेट ठीक होवे यकीन करो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस, बराड़ थल्ले डिग जानी है। 80 ते 62 रह गए बंदे। जी आसफ भाई आए ने जी, आसफ भाई अस्सलाम वालेकुम। अबू हसन भाई कोई गल करना चाह रहे थे ते आसफ भाई तुसी करनी तुसी कर लो जी, कर लें जिसने भाई ने करनी है, कोई मसला नहीं। भाई जी मुफ्ती साहब कैसे हैं? तो जैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको आपके इल्म में, आप में ज़िंदगी में, आपके कारोबार में सब में बरकत अता फरमाया। माशाल्लाह आप जो काम करते हैं और ख़त्म नबूवत का, जो कादियानियत, रद्द कादियानियत का लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, इनका दजल, इनका जो फ़रेब है, धोखा है लोगों को देते हैं, तो माशाल्लाह जो आपने किताबें लिखी हैं, जो आपने मेहनत की है, अल्लाह ही इसका अजर देगा आपको इंशाल्लाह। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपको अजर देगा। बाकी माशाल्लाह आपको सुनते हैं, बैठते हैं, आप लोगों से सीखते हैं, हम तो
तो आप भाइयों से सीख जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। अच्छा, मैंने ऐलान भी सरे दस्त कर दूं, मुझे अभी याद आ गया है। ये जो किताबें हम ये इरसाल कर रहे थे, 5 किताबों का मजमूआ इरसाल कर रहे थे, वो अभी डाक हमने बंद कर दी है। तकरीबन इस तरह के जो पैक हैं 900 पैक, 900 डाकें, ठीक है, 900 डाकें हमने रवाना की इस एक हफ्ते के अंदर। तो आज ऐलान किया है, किताबें चूँकि ख़त्म हो गई हैं और जितनी थी मेरे पास तो वो सब फ्री तकसीम कर दी, ठीक है। और मज़ीद आगे रश लगा हुआ है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, किताबें भेजें, किताबें भेजें, किताबें भेजें, किताबें भेजें। हूँ किन्नू बंदा जाके दसे मैंने इतना ऐलान किया है कि भाई ख़त्म हो गई। माजरत करते हैं हम आपसे, माजरत करते हैं। अब दुआ ये करिए कि ये किताबें छप जाएं मज़ीद, तो फिर इंशाल्लाह जब छपेंगी तो फिर ऐलान कर देंगे तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। लेकिन अभी जो अल्लाह को मंजूर, जिसकी जो किस्मत में जिस तक जानी थी, अल्लाह ने जिस तक पहुँचानी थी वो पहुँच गई, ठीक है ना। बस यही कह सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अब सब की डिमांड तो नहीं पूरी की जा सकती ना, मुश्किल। तो हमारी ताकत और बसात में जो था हमने वो किया। मज़ीद अल्लाह जैसे चाहेगा वैसे होगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला अभी जो नेक्स्ट किताब छपवानी है हमने, वो है मिर्ज़ा कादियानी की इल्हामी तिजारत। इसका ऐलान हमने किया था और इस प्रोजेक्ट को हमारे भट्ट साहब, नदीम भट्ट साहब, उनके सारे इसका सेहरा जाता है इस किताब के छपवाने का, कि उनकी अपनी जो टीम है उन्होंने इसके तकरीबन 550 पाउंड इकट्ठा किया है। वो हमारे पास इमानत है। टोटल इसकी जो छपवाई के ऊपर लागत आ रही है वो तकरीबन 1500 पाउंड हमने जो एस्टिमेट निकाला है। 1500 पाउंड जब जमा हो जाएगा तो ये किताब फिर हम छपवा देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा ऐलान, और ये हमारी टोटल किताबें फ्री होती हैं। हम इसको कोई दोस्त हमें छपवा देता है तो उसको फिर आगे हम तकसीम कर देते हैं। सिर्फ डाक खर्चा हम ज़रूर लेते हैं। अभी जैसे इसका जो डाक खर्च था एक पैक का, वो 250 रुपया हमने लिए, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार है हमारा। जी करें जी बात। मुफ्ती साहब देखें, जो व्हाट्सएप पर आते हैं आपसे कहते हैं रब्ता करते हैं, तो आप वही PDF कर दें। देखें जैसे मैंने आपसे किताबें मांगी थी, PDF आपने तो मुझे देखिए भेजा, आसफ भाई हर एक को देते हैं, हर एक को देते हैं। लेकिन पता है क्या, आप लोग मुल्क से चूंकि बाहर बैठे हुए हैं, आपके लिए तो PDF फायदा देती है। लेकिन जो मुल्क में है ना, पाकिस्तान में है, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हार्ड कापी हमारे पास हो, क्योंकि उलमा का तबका है ज़्यादातर, और उलमा जो है वो PDF नहीं पढ़ते, वो हार्ड कापी से इस्तेफादा करते। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप माशाल्लाह बहुत उम्दा काम। और 900 डाक एक हफ्ते में, माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत बड़ा ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने काम और जो कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो बिल्कुल जो मुल्क के बाहर हैं वो PDF पर ले लें, वो उनके लिए तो बहुत इजी और बेहतर है, क्योंकि PDF पढ़ना लोग काम में होते हैं, वहीं से मोबाइल से खोल कर वहीं से पढ़ लेते हैं। तो हमारे लिए तो ईजी होता है। अब जो भी किताब चाहिए आपको मैसेज कर देते हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ये भी बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में हमारी किताब बढ़ी गई है। ज़्यादा जो किताब है वो सिंध में गई है। सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबों की तरवीजो इशात बहुत ज़्यादा हो रही है, और चूँकि वहाँ पे कादियानियत अंदर खाने बड़ी फैल रही है, तो वहाँ पे काम की अच्छा ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन किताबों के इतने फ़वाइद मुरतब हो रहे हैं, आए रोज़ खुशखबरियाँ भी मिल रही हैं, और कादियानी लोग मुसलमान हो रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और राह रास्त पे आ रहे हैं। और जो लोग भूल भटक के इनके पीछे चल पड़े थे, तो उन तक हमारे जो दोस्त हैं जो किताबें मंगवा रहे हैं, तो वो हकायक पढ़ पढ़ के उनको सुनाते हैं, दिखाते हैं,
तो वो राह रास्त पे आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद मुरतब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ाना की बेस के ऊपर मेरे व्हाट्सएप के ऊपर इतनी खुशखबरियाँ मिलती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है जी, तो इसके फ़वाइद तो है ना हार्ड कापी के जी। माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर। और जो मेहनत कर रहे हैं सब भाइयों को, ख़त्म नबूवत के जितने भी मुजाहिदीन हैं, बस हम तो उनके लिए आसा दुआ भाई हमारा मांगते तो हैं। अपना एक मौक़िफ़ है कि देखिए अगर 1000 किताब हम छपवाते हैं, यानी 1000 कापी छपवाते हैं, उनमें से सिर्फ एक बंदा भी राह रास्त पे आ जाए ना काफ़ी है। एक बंदा। बेशक ये बेशक। कौन आए हैं जनाब नए बंदे, क्या नाम लिखा है भाई, बोलिए। इत्साकी साकी साहब, ये भाई है हमारे, मुसलमान भाई है, इत्साकी। जी बोलिए जी भाईजान साकी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। गज वज के बोली दा हुंदा है, उच्ची बोली दा। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत, क्या हाल है, ठीक है आप? वालेकुम सलाम। हुन आवाज आई है ना, इंज करके पता मौला चले बंदा सलामत कोई रखे, बोले है भाई। मौला सलामत रखे। माशाल्लाह मैं अभी गुफ्तगू सुन रहा था आसिफ भाई की और आपकी, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं यार आप, बहुत बड़ा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन जी आमीन माशाल्लाह। आमीन। तो हमें भी जो है ना ये किताबें जो भेजें ये पीडीएफ में, क्या जो है ना, तो ताकि हम भी व्हाट्सएप जो पर है ना आता करे ना, मेरा मिर्ज़ियों- व्हाट्सएप नंबर मेरी इसी आईडी की बायो में लिखा हुआ है, तो वो मैं इस्तेफादा हजरत करिए। ये आज फर्स्ट टाइम आपसे ये गुफ्तगू हुई, ये मैंने फॉलो कर लिया आपको। और अभी जज़ाक इंशाल्लाह जज़ाक जी मैं इंशाल्लाह रास्ते आपसे में रहा करें, आना जी, जाना जी, रखते जी। हैं, मुलाकात रखते हैं। तो वो कहते हैं ना, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, समझ आई कि नहीं? तो वो ये है कि आना जाना रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो फिर नई नई मालूमात मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। नहीं अभी अभी बस ये आसिफ भाई की मोहब्बत है, अभी एक मिर्जाई की मंजी ठोक के आए हैं थोड़ी सी। हाँ सब भाई बड़े खिलाड़ी हैं, खुद बड़े खिलाड़ी हैं। बहुत बहुत बहुत। मैं ऐसे ही बस ओपन अच्छा किया नए तो मैं कलर चला मुझे गया। नजर आ रहे हैं उस्मान भाई, कोई यार मैं ना कोई शिकार आ जाए ते कोई पार्टी शुरू होए। हैं इंजीनियर भाई हैं, वो भी अपने हैं, वो भी अपने अच्छा हैं। तो अभी कोई अच्छा दूर दूर तक भी कोई आ नहीं नजर आ रहा। दिल्ली ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਫੋਰ ਯੂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਆਏਗਾ ਆਪੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਣਗੇ। ਆਣਗੇ ਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਇਲਹਾਮੀ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 19 अक्टूबर 1892, यानी दावा नबूवत तो 8 साल पहले इल्हाम हो गया सी मिर्जे कादियानी दे उत्ते कि जरे चंदा हैदराबाद, जरे चंदा हैदराबाद ते तज़करा दे सफ़ा नंबर 183 दे उत्ते ये सिर्फ और सिर्फ चंदे ते नोट इकट्ठे करन दा हिसाब किताब जी, होर कुछ भी नहीं। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਟੋਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੱਤ ਮੇਰੀ ਗਈ ਹੈ ਡਿੱਗ ਤੇ ਛੱਤ ਬਣਵਾਓ ਬਈ, ਹੈ ਛੱਤ ਬਣਵਾਣੀ ਜੇ। ਇਹ ਜਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਲਦ 19, ਜਰਾ ਮੈਂ ਫਾੜੀ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਜਿਲਦ 19। ਇਹ ਲੋ ਜੀ रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 ਤੇ ਸਫਾ 86 ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਫਾ 86 ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸੁਰਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਵਾਸਤ ਚੰਦਾ ਬਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ। ਇਹ ਲੋ ਆਂਦਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਨੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਨੋਟ ਨੋਟ, ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਵਹਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣੇ, ਬਸ ਐ ਸੀ ਡਰਾਮਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼। ਹਾਂ ਆਓ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਓ ਯਾਰ, ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਸ਼ੰਜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੰਜੀ ਢਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਕੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਓ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਓ, ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਡਰੀਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, इमरान साहब तशरीफ ले आए जी। इमरान साहब जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी वालेकुम, थोड़ा जा उच्चा बोलना, मैं उच्चा सुनता जी। जी मैं क्या अस्सलाम वालेकुम, सारे ठीक ठाक ने, तुसी ठीक हो मुफ्ती जी साहब? अल्लाह दा शुक्र है जी, वालेकुम सलाम जी। जी मुफ्ती साहब ये जेड़ी तुसी गुफ्तगू कर रहे हो, ये रसूल दी केड़ी सुन्नत है? कौन मर गया? केड़ी सुन्नत है रसूल दी? मंजी ठोक देंगे ते पैसे? अच्छा अच्छा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल रसूले कदनी दी सुन्नत रसूल ये कोई नवा रसूल आया? मिर्जा कादियानी वो अपने रसूले कदनी कहंदा सी। ये तुसी ओदी गुफ्तगू इस्तेमाल कर रहे हो? हां ओदी गुफ्तगू अंदर जिंज दा मुंह होए उंदी चपेड़ मारी दी। फॉलोअर ओदे फॉलोअर तुसी ओदे फॉलोअर? नहीं फॉलोअर ते नहीं है सी, लेकिन है वे के ओदी करी दी मेंबर रसूल ते बैठ के जेदी सुन्नत रखी होवे। नहीं मेंबर रसूल नहीं जे, है मेरी अपनी कुर्सी जे, तुसी मेंबर रसूल बना छड़े मुल्हे ने हुने शातमत कर देनी है ते मैं थले ला ते मुल्हे दे ते इनु ब्लॉक करना सी ना, ब्लॉक क्यों नहीं जे कीता? ब्लॉक करो करता है, कर देता है नु ब्लॉक करो ब्लॉक। मैं नीचे लिख रहा था कि काला यहूदी है ये। ओ नहीं मेरी बराड़ ते बिल्कुल आसरा ही नहीं। ब्लॉक सीधा ब्लॉक ठोकना, म्यूट भी नहीं करना, ब्लॉक कोई ऐसी रत्ती बराबर भी। हाँ साढ़े नाल खुल के खेडो आके, ड्रामेबाजी नहीं चलनी। अच्छा जी अगले कालर नूं मैं चुकन लगा वां। MIR साहब ने, मीर चिल्ली साहब चले गए। अच्छा जी अगले कालर नूं चुकीए, हाफिज आकिब साहब तशरीफ ले आ रहे ने जी। हाफिज आकिब साहब जी, आप साहब बोलिए। हाँ साहब बोलिए। हाफिज साहब बोलिए। चलो कोई नहीं, इरादा थे जाओ फिर, इतने चुप करके नहीं बहना। स्पीड साहब आए ना, स्पीड। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब एक दरख्वास्त है, अगर तमाम बातें अगर उर्दू में हो तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? क्योंकि मैं समझा शायद आप करने लगे दरख्वास्त बराए चंदा तुसी मकान। नहीं ऐसा कोई इरादा नहीं है। कहने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग यहाँ जो है उर्दू बोलते हैं, तो अगर पंजाबी जो है वाले थे वो तो उर्दू समझ जाएंगे, लेकिन जो उर्दू बोलते हैं वो पंजाबी नहीं समझ पाएंगे। तो लिहाजा अगर बातें उर्दू में हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। उर्दू में जनाब, बड़ी मेहरबानी, उर्दू में करेंगे इंशाल्लाह। जी मेहरबानी, थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा मैं ना ब्राड ज्यादा देर तक चला नहीं सकता। एक बज के बहना ना मेरे से वही बड़ी नू एक अच्छा फिर उर्दू भाई, उर्दू बहुत कोफ्त होती है, और बंदा एक जगह पे वो ऐसे फोकस करके बैठा हुआ है, बड़ा मुश्किल होता। पता नहीं जो पूरी रात और 24 घंटे बराडे करते कैसे कर लेते, अल्लाह ही जानता है। मुझसे तो आधा घंटा ना एक जगह पे जम के बैठना मुश्किल हो जाता। मैं आज़ाद सा आदमी हूँ, आज़ाद सा आदमी हूँ, थोड़ा सा बात कर ली, फिर थोड़ा सा चहल कदमी कर ली, कोई इधर उधर, हाँ जी पानी शानी पी लिया, कोई खाना शाना खा लिया, तो फिर आ गए, फिर थोड़ी सी बात कर ली, ये आदमी। तो अब ये देखे तो बाप 50 मिनट की बराड़ हुई है,
और कम खराब हो गया। साहब आप ऐसा करें ना, ब्लूटूथ लगा कर ना, ब्रॉड लगा के, तो चहल कदमी भी साथ फोन हाथ में रख कर। अच्छा, ब्लूटूथ का मामला ये है कि ये देखें, मदीना शरीफ से ये ब्लूटूथ मैंने खरीदी स्पेशल ये इस काम के लिए। तो लेकिन वो पता है क्या, एक तो मेरा ये मोबाइल खराब है, कुछ मोबाइल की खराबी है, कुछ वो पता नहीं डिटेक्ट सही नहीं होता, वॉइस मिस हो रही होती है, मुझे बड़ी अजीबो गरीब से काम चल रहे हैं। तो अभी मैं चाह रहा हूँ इंशाल्लाह कोई अच्छा मोबाइल, अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का। नीचे म्यूट करना उद्दी साहब का, ये अस्तगफिरुल्लाह, इसको म्यूट करना। किनको ब्लॉक कर दो, ये म्यूट कर दो। ये हुदी नामी आईडी है कोई, अस्तगफिरुल्लाह। हुदी हाँ, ये इसका तरीका कार होता है कि पहले बंदे को हम करेंगे म्यूट, ठीक है। अच्छा, म्यूट करने के बाद अब करेंगे आगे, मैंने ब्लॉक कर दिया वैसा, तो मुझे ब्लॉक कर दिया ब्लॉक। हाँ चले, बिल्कुल ठीक। दोनों काम, दो काम, म्यूट भी कर दें ताकि उसके सारे कमेंट डिलीट हो जाएं और साथ ही ब्लॉक करें, ये तरीका करो। आ जाओ भाई, कोई तबलीग वगैरह कर लो भाई, आ जाए तबलीग कर लें कोई, क्योंकि ये कब्र के अंदर तुम लोगों को जाके सवाल होना है। चंदा दिया था, तबलीग की थी, चंदा दिया था कि चंदा दी थी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम इंजीनियर भाई। मुफ्ती साहब कब वापसी हुई आपकी? अभी जी बस कुछ दिन ही हुए हैं, 1-2 दिन ही हुए हैं कोई शायद। मैंने किया था मैसेज उस वक्त, आप मदीना शरीफ थे, मैं भी गया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मक्का शरीफ था। और जिस दिन आपने आना था उसी दिन मैंने, वरना फिर वह इंशाल्लाह मुलाकात होती इंशाल्लाह ताला। हज के बाद वापस मदीना शरीफ ही जा रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर उधर ही मुलाकात होगी। मुस्तकिल अभी रहने का इरादा है इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे लिए भी अभी मदीना शरीफ से ना 1 इंच भी इधर उधर नहीं होना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, वो जो छोटे मिर्जे के जो मुर्शिद है, उसने जो खप मारी है पिछले दिनों कादियानियों के पीछे नमाज वाली, वो भी आपने देखी होगी वीडियो? हाँ जी, उसके ऊपर हमने एक ब्रॉड की थी, उसका जवाब दे दिया हमने। तो ये कादियानियों के यार हैं, ये सब कादियानियों के यार। इन लोगों की रिश्तेदारियां कादियानियों से, उसी को निभा रहे हैं ये लोग, कादियानी यार। कोई नहीं यार, फिर चस नहीं कोई आई यार। अज आसफ खान साहब तशरीफ ला रहे हैं। आसफ खान साहब, जी जनाब। आसफ खान साहब बोलिए भाई जी, बोल ले। मेरे ख्याल चलो फिर थल्ले जाके बहो। नेट कनेक्ट नहीं हुआ उनका। वो कायदे आजम साहब तशरीफ ले आए हैं, कादियानी मुरब्बी साहब आ गए हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है? ठीक है। हाँ कश्मीरी साहब आपको मुबारक हो, आपने लानत डाल दी थी मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब के ऊपर। जी जी, खैर मुबारक। तो आपको भी मुबारक देनी है कि वो एक जो नहीं जेल बंदा गया था, आपने जो भेजा था, वो कुत्ते की मौत मर गया है। कुत्ते की मौत मर गया? जो गाजी बनने चला था, जो गाजी बनने के लिए गया था। अच्छा, वो कुत्ते की मौत, वो जरा मिर्ज़ा कादियानी ते इल्हाम होया सी, ओदी गल करदे पे? कुत्ते की मौत नहीं, आज जेल में जो इधरों मिर्ज़ा कादियानी दे उत्ते इल्हाम होया सी कुत्ते की मौत। नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की अकेडमी के बाहर जो गया था 26 मई ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ है, वही है ना? नहीं, आज जो न्यूज नहीं देखी आपने, वो जो गाजी बनने गया था, वो गाजी बनते बनते कुत्ते की मौत मर गया है। बल्ले कुत्ते की मौत। हाँ जी, वो आपने भेजा था। खुशी होनी चाहिए, ਤੁਹਾਡੇ मसीह साहब ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ मौत। ਉਹ ਕੁੱਤੇ की मौत मरा है ना, हमें तो खुशी है। वही तो कह रहे हैं। तो लुटी इधर कैमरा ऑन करके लुटी तो पाओ जरा थोड़ी जी,
नहीं हमें जो है ना, हमें बहुत खुशी है कि वो कुत्ते की मौत मरा है, उससे जो है ना इंसानी जान जाया नहीं हुई है। कैमरा ऑन करके कोई लुड्डी थोड़ी सी डाले, लुड्डी डाल के दिखाए। लुड्डी आप डाले ना, आपका बंदा था वो। हजरत मसीह साहब का इल्हाम पूरा हो गया जी, निशान पूरा हो गया। लुड्डी आप अच्छी डालते हैं, आप लुड्डी डालें। नहीं मैंने कितने डाल दी है, खुशी तो हुई है कि मैंने हुई है। चलो आप रो के अभी तो आप कह रहे कि खुशी मुझे बड़ी हुई है, वो खुशी का इजहार तो करे ना कैमरा ऑन करके। खुशी का इजहार कर दिया, आपको पैगाम दे के खुशी का इजहार दिया। कुत्ते की मौत, कुत्ते की मौत, खुशी का इजहार किया ना, आपको पैगाम दिया कि जो आपने बंदा भेजा था ना, वो कुत्ते की मौत मर गया है। कुत्ते की मौत, कुत्ते की मौत। अच्छा, रिजवी से सुलह हुई है कि नहीं? मर गया लैट्रीन दे विच 26 मई ਨੂੰ। अच्छा ये बता रिजवी से सुलह हुई है कि नहीं? रिजवी से सुलह की है? कुत्ते की मौत नहीं, एक बारी दोबारा कुत्ते की मौत। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੁੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ? 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਯਾਰ, ਬਸ ਕਰਨਾ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ। 26 ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ। ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਓ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। लेकिन मैंने खुशी आज हुई है ना यार, जड़ा कुत्ते दी मौत मरिया उसकी खुशी है ना। मिर्जा कादियानी लैट्रीन च मरिया 26 मई ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ। यार मैं उसले पैदा कोई ना होया, मैनू नहीं पता उसदा। मैं मेरे अखां अगे जेड़ा वाकया होया, मैं उसदी गल करसा ना, मेरे सामने जेड़ा वाकया होया, आज कुत्ते दी मौत मर गया। करो भाई गलबात करो भाई, कुत्ते दी मौत। अच्छा रिजवी ना सुलह हुई है कोई नहीं? कुत्ते नाल कुत्ते दी मौत दे उत्ते गल करो भाई। रिजवी दी सुलह करा दिया तेरी रिजवी नाल? नहीं कुत्ते दी मौत, कुत्ते दी मौत आज तो हो गई, कुत्ते दी मौत। कुत्ते दी मौत, कुत्ते दी मौत। मुफ्ती पागल हो गया। मैं कादियानी ने जो हुकूमत बनाई थी ना, ये उधर का कायदे आजम है, और मिर्जा जूनियर जो है ना, उधर का गवर्नर है। इनकी ख्याली जो थी हुकूमत, ये उधर का वैसे मुफ्ती आज जाली का काम है, वो कुत्ते की मौत मर गया तो जाली कायदा। कुत्ते दी मौत, कुत्ते दी मौत, कुत्ते दी मौत। मुफ्ती साहब अफसोस है, जाली कायदे आजम साहब, वो मुफ्ती साहब कुछ कह रहे हैं कि 26 मई कुत्ते की मौत, ये कह रहे 26 मई कुत्ते की मौत। भाई उस वक्त मैं नहीं था इस दुनिया में, मैं आज हूँ इस दुनिया में। आज की बात करो, जो कुत्ते की मौत मारा गया है उसकी बात करो। ओ भाई 26 मई तो आज भी आता है ना, अब भी आता है 26 मई, आपके जिंदगी में 26 मई आता है, लेकिन वो वाकया नहीं ना आता। नहीं आप वैसे 26 मई कुत्ते की मौत है अंजीरा भाई, 26 मई कुत्ते की मौत वैसे कह रहे हो आप ना लो ना, आपके वैसे कह रहे हो 26 मई कुत्ते की मौत। 26 मई में आपका कोई अजीज फोटो हुआ था? यार आप क्यों डाल रहे हो? आप 26 मई कुत्ते की मौत। वैसे मुफ्ती साहब बड़ा अफसोस है, तुसां दा जेड़ा बंदा मर गया तुसी हंस रहे हो। 26 मई कुत्ते की मौत, तुम्हारा कुत्ता मर गया तुसी हंस रहे हो, दंद काट रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। वैसे कुत्ते की मौत, 26 मई कुत्ते की मौत। हाँ आज ते हो गए कुत्तिया आज ते हो गए कुत्तिया है। पंजाबी कंबो हम नहीं मनाते। 26 मई कुत्ते की मौत। हाँ नारा लाओ मेरे नाल, रल के लाओ नारा लाओ, चलो नारा लाओ। 26 मई कुत्ते की मौत, लाओ 26 मई कुत्ते की मौत, 26 मई कुत्ते की मौत। चले जी 19 अप्रैल कुत्ते की मौत। 26 मई 26 मई कुत्ते की मौत। मुफ्ती साहब कह रहे हैं 26 मई कुत्ते की मौत, कह दे हम कह दे यार 26 मई कुत्ते की मौत। बस मैं नहीं यार, गलत पढ़ रहे हैं। आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में 26 मई आया तो कह दो 26 मई कुत्ते की मौत, बस इतना कहना है आपने। यार आज दी गल करो, आज जड़ा मरिया है वो कुत्ते की मौत। आज 26 मई किधर गया? 26 मई किधर गया? 26 मई लेट है ना, वो बाद विच कर दे सा नहीं, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਪੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਕਿਉਂ ਛੋੜਨਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ 26 ਮਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਸਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ।
ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲੈ ਵਕਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ 26 ਮਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 26 ਮਈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ 26 ਮਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਮਰਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੱਟੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਰ ਮੁਫਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਜਿਲਦ ਅਵਲ ਤੇ ਸਫਾ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਟੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਏ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਿਤੇ ਬਾਏ ਚੱਲੇ ਕਿਤੇ ਬਾਏ ਰੋਕਣਾ ਹੁਣ 26 ਮਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ 26 ਮਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ 26 ਮਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆ ਕਰਾ ਛੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਆ और रहील आया भाई कुत्ते दी मौत 26 मई कुत्ते दी मौत रहील की हाल है 26 मई कुत्ते दी मौत देवबंद के अंदर 26 मई कुत्ते दी मौत तेरी शक्ल सूर वर्गी है 26 मई कुत्ते दी मौत तेनु काफिर मुर्ताद कहंदे ने 26 मई कुत्ते दी मौत वो आसफ अनपढ़ मैं होई नारा रखना हूं नहीं वो इधर उधर नहीं जाना 26 मई कुत्ते की मौत 26 मई ओए आसफ अनपढ़ ओ तेरे मोची दा बंदा मर गया ही हो मोची दा बंदा मर गया 26 मई कुत्ते की मौत मोची ओए मोची 26 मई कुत्ते की मौत ओ देवबंदी नु काफिर मुर्ताद कहंदे ने दूसरी बरात ते ओ देवबंदी नु काफिर मुर्ताद कहंदे ने आसफ अनपढ़ ओ जाके स्टाला काटो के बकरी नु स्टाला पाओ अनपढ़ बंदे 26 मई कुत्ते की मौत ओ जाके बकरी नु स्टाला पा जाके ए मौलवी दा गंदा वा देवबंदी नु काफिर मुर्ताद कह रहे ने काफिर मुर्ताद कह रहे ने कसम खुदा दी दूसरी काफिर मुर्ताद कह रहे ने दूसरी बरात से देवबंदी नु काफिर मुर्ताद ते जिंदगी कह रहे ने ते हंसदा पिया शर्मिंदगी ना हंसदा पिया शर्मिंदगी ना हंसदा पिया भाई 26 मई कुत्ते की मौत है शर्मिंदगी ना हंसदा पिया ओ मौलवी मई कुत्ते की मौत हंसदा पिया 26 मई कुत्ते की मौत हंसदा पिया भाई ना खुश हो 26 मई कुत्ते की मौत ओए आसमान पढ़ ओए आसमान पढ़ ओए आसमान पढ़ मौलवी मोची हंसदा पिया मैं हालांकि मुफ्ती कहना ओ देवबंदी नु मोची कही जान दे ने ओ देवबंदी नु मोची कही जान दे ने ओ देवबंदी नु आसफ अनपढ़ 26 मई कुत्ते की मौत अनपढ़ ओए आसफ अनपढ़ तेरे मौलवी दा बंदा टट्टी च मर गई ओए अपने मुंह दे विच टट्टी ना पा और नांती शख्स ओए अनपढ़ ओए अनपढ़ इस मौलवी नु जो बंद काफिर मुर्ताद कह रहे ने कोई नु अनपढ़ 26 मई अनपढ़ हर जगह 26 मई अनपढ़ सारा कुत्ते की मौत 26 मई कुत्ते की मौत है ओए अनपढ़ 26 मई कुत्ते की मौत अच्छा ਦੰਦੀਆਂ ਆਪੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੁਫਤੀ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਮੁਫਤੀ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਆਪੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਐ ਪਾਗਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣ ਗਏ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਤੇ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਦੰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਈ लो जी चले गए लो जी मुरब्बी साहब कॉल डाल के निकल गए दिलबर साहब आ रहे हैं जी जनाब दिलबर साहब अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब अच्छा अहमद साहब भी आ गए हैं दो बंदे आ गए हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी अहमद साहब पहले आप बात कर जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सर ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सर ये इंजीनियर मिर्जा साहब के बारे में थोड़े से सवाल करने अगर आप जाओ तो सवाल कर सकते हो नहीं पहले मेरे वड्डे इंजीनियर मिर्जा कादियानी साहब के बारे में एक हमारा सवाल था तो वो जवाब दे दें तो मेहरबानी सर अभी मैं सवाल करने के मूड में तो मैं कहता हूँ फिर मेरे सवाल का जवाब दें फिर कोई बात नहीं खैर ये जो 26 मई को मिर्जा साहब के ऊपर पहले तो इल्हाम होता है कुत्ते की मौत और उसके बाद 26 मई को वो लैट्रीन के अंदर मर जाती हैं तो ये कहा जाएगा कि नहीं मिर्जा साहब का इल्हाम सच्चा हुआ था कि झूठा सर देखिए मैं सवाल करने आया हूँ आप आगे आपने नई रूल ऐसे बताया तो सही ना
मिर्जा साहब के सर, ऊपर मुझे पता ही नहीं है जो सर, हुआ था ये जो कुत्ते आप की कह रहे मौत, हैं- ये सच्चा हुआ कि झूठा हुआ? बात सुने सर, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं अल्लाह इल्हाम को के गवाह अगले बना दिन ही के वो 26 मई को लैट्रिन के अंदर मर जाते हैं। सर फिर मैं चल नीचे बैठ जाता हूँ फिर अगर कोई मसला नहीं है, वो आपकी मर्जी है, जवाब नहीं चलिए, देना मैं- आपको। हम यही मैं- समझें कि मिर्जा कादियानी कज़ाब साबित हो गया है, कि या ये कहें मैं कि मिर्जा अल्लाह- कादियानी सच्चा साबित हो गया है। मैं अल्लाह को गवाह क्या बना के समझे? कहता हूँ, आप ये जो बात कर रहे हैं मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं। अब नहीं समझ आई, मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को जानते हैं कि नहीं आप? नहीं सर, मैं नहीं जानता। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नहीं जानते, जिसने नबूवत का दावा नहीं, किया था? नहीं मैं नहीं जानता। तो लानत डाल दे फिर कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर लाख दी लानत। नहीं, मैं तो किसी को नहीं डालूँ, मैं तो आप ही को बोले तो नहीं डालूँ। देखिए है शर्म तो नहीं जे हुंदी, शर्म तो नहीं जे हुंदी, शर्म तो नहीं जे हुंदी कि ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਤੰਬੀ ਲੈਂਦੀ ਜੇ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਔਕਾਤ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ- ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ- ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਕਜ਼ਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਐਨੀਵਨ। सर आपकी ਇਹ बात ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਮੁਸਲਿਮ ਖੋਲਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ। ਹਾਂ सर आपकी बात कंप्लीट हो गई है। ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ मैंने ਲਾਨਤ बहुत ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ, मैंने बात शुरू की थी इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब के बारे में। ਪਾ ਦਿਓ ਲਾਨਤ ਫਿਰ सवाल है। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ। सर मुझे क्या ਤੁਹਾਡਾ हकीकत ਮਸੀਹ है? ਉਹ ਲੈਟਰੀਨ ਚ ਮਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ सर जी ਦੀ ਗੱਲ मैं ਕਰਦੇ ਹੋ। दरबारों पे जाना चाहता हूँ, मुझे बताएं कौन सा दरबार? ਦਰਬਾਰੋਂ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਜ਼ਾਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਖਲਵਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। ਆਇਆ ਨਾ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਦੱਸਣੇ ਦੇ ਪਏ ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣੀ, ਟੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਚੱਟੋ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਮਾਰਾਂ ਤੇਰੀ ਲੰਨ ਤੇਰੀ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਥੱਲੇ, ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਮਰ ਜੋ ਇਹ ਗਾਣੇ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਲਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਦਿਲਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਔਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਡਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਿਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ। बेशक बेशक। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿਛਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦਿਲਬਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭ ਹੀ ਕੱਟ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਬਸ। ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਯਾਰ। ਨਾਰਾਜ਼ ਅਸਲ ਜਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੰਦ, ਤੇ ਚੋਂਦਾ ਚੋਂਦਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਇੰਜ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਐ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਝਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। अच्छा गाਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। कादियानी आता है ना, जो भी कादियानी आता है ना, वो जाने से पहले मिर्जा साहब की तबलीग जरूर करके जाता है हमें। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਤਬਲੀਗ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਢਾਏ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ, ਤੇਰੀ ਭੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇकुम अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम सलाम।
ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 26 ਮਈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ 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 ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰੋ ਨਾਲੇ बस भाई बस भाई आज तो वजह तारी हो गए कमाल हो गई आज ऐसा डॉक्टर साहब जरा थोड़ा जा साह लिया जाए मैं ना कुछ चौंदा कोई कादियानी आए तत्ता अंज आके जनाब ते खामोश साहब तशरीफ लिया रहे ने देखो जी खामोश साहब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या हाल है खुश हो आप बेहतरीन जनाब सवाल मेरा ये था मुफ्ती साहब कि हम लोग देखते हैं कि अक्सर हमारे जो आदमी होते हैं ना तो ये कादियानियों की ब्रोड पे जाकर उनसे कुरान और हदीस पे बहस कर रहे होते हैं तो मेरा ये सवाल था कि क्या हमारे लिए ये जायज़ है कि हम कादियानियों की जो ब्रोड पर जाकर कुरान और हदीस पे उनसे बात करें क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि वो तो कुरान और हदीस को मानते ही नहीं और वो अपना एक जो बुरूज ही पता नहीं कौन सा लानती बनाए हुए हैं तो ये ना हो कि हमारे बंदे वहाँ जाकर उसकी किताबों पे बात करें ना कि कुरान और हदीस पे जी हाँ ये है कि कुरान हदीस पे मैं भी कहता हूँ कि करनी चाहिए बात लेकिन कुरान हदीस से ऐसी बात करें कि उन्हें पूछें कि बताओ वो कौन सी आयत है या वो कौन सी हदीस है कि जिसमें लिखा है कि मसीह मऊद कभी कभी ज़ना करेगा बताओ वो कुरान की आयत बताओ कि मसीह मऊद जो होगा वो कभी टानक वाइन पिएगा कभी पोर्ट वाइन पिएगा कभी कोको वाइन पिएगा वो कौन सी आयत है आओ कुरान हदीस से बात करते हैं तो इस एतबार से तो करें कुरान हदीस से बात कोई मसला नहीं है मिर्जे की ज़नाकारी हरामकारी शराब नोशी और पेट मरवानी सब कुछ पूछिए इनसे जी हाँ ये तो बात हो सकती है लेकिन वो अक्सर हमारे बंदे जाते हैं ना तो वो वैसे ही शुरू हो जाते हैं और उन्होंने एक तावील बनाई हुई है जैसे कोई नया बंदा जाता है कि उससे पूछते हैं कि तुम क्या साबित करना चाहते हो कि वो डायरेक्ट माँ काना मोहम्मद वाली आयत पे आते तो उसकी उन्होंने एक तावील बनाई होती है वो फिर आगे से चुप करा लेते हैं इससे ये बेहतर नहीं है कि जो भी बंदा जाए कि मिर्जे की किताबें पढ़ के और उनके सामने मिर्जे के दावे रखे कि वो जनाबे वाला एक कौन सा जो था पता नहीं तुम उसको पैगंबर बनाए बैठे हो जो एक जेब में गुड़ रखता था एक जेब में पत्थर और गुड़ से ही सफाई करता था और उसी गुड़ को खाता था तो मेरा मकसद ये है कि यानी ऐसी जो बात है ना उनकी जो वो पता नहीं गालियां मिर्जे की किताबों में शायद गालियां भी लिखी हुई हैं तो ये चीज़ें जो है ना लोगों के सामने लानी चाहिए भाई कुरान और हदीस से दिखाओ कि ऐसी ज़बान बोलने वाला कोई पैगंबर हो सकता है तो ये चीज़ तो आपकी ठीक है लेकिन डायरेक्ट जाते हैं कुरान और हदीस पे बात कर रहे होते हैं मीठी मीठी तो ये तरीक़ेकार जो है ना ये बंदों का सही नहीं होता मुफ्ती साहब देखें खामोश भैया आपका नाम क्या है पहले बात कर चुका हूं भाई ये आपका जो सवाल है या आपका जो दर्द है मेरा भी यही दर्द है बड़ी दफा दोस्तों को समझाया है तो लेकिन अगर कोई ना समझे तो अब क्या उसको कैसे समझाएं बताइए हैं तो वो भी प्यारे हमारे दोस्त ही हैं प्यारे हैं लेकिन वो अपनी इस हरकत से बाज ना आए तो इसका हल तो नहीं है कोई हमारे पास नहीं देखिए मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरी है मैं एक मुफ्ती हूँ आलिम हूँ बल्कि मेरे शागिर्द मुफ्ती बन गए हैं मेरे शागिर्द वो बल्कि शागिर्दों के शागिर्द आगे से मुफ्ती बन गए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई फख्र वाली बात नहीं है सिर्फ एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि कादियानियों के साथ कुरान हदीस के ऊपर हम भी बात कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि मैंने तो अभी तफसीर लिख रहा हूँ तफसीर ख़त्म नबूवत कुरान पाक की तफसीर ख़त्म नबूवत की जो तफसीर है
जहां जहां पे मिर्जे कादियानी ने डंडी मारी है तो उसको पकड़ के मैं ला रहा हूं कि ये इसने डंडी मारी है। तो कुरान हदीस हमें भी आता है, कोई ऐसा कोई दूर नहीं है हमसे कुरान हदीस, लेकिन आज तक हमने कभी आपने नहीं देखा होगा कि कादियानियों से मैंने कुरान हदीस के मौजू पर बात की हो। मैं तो मिर्जे की जो ज़नाकारी, हरामकारी, चोरी चोर चकारी, डंडीबाजी और रंडीबाजी है इसी को ही पेश करता हूँ और इसी पर ही बात करता हूँ। वो जो कादी जार मोहम्मद से पीछे से उंगलियां लिया करता था वो उसकी बात करती है। और ये है ही ये उसकी जो करतूतें हैं वो ही हम बयान करेंगे और क्या है। और हम तो यही कहते हैं पहले उसको एक शरीफ इंसान साबित करो। कुरान हदीस में क्या लिखा हुआ है बाद में तुम्हें बताएंगे, उसका अभी वक्त नहीं आया, वो अभी वक्त नहीं आया कि तवफ़ा का तर्जुमा क्या है, खातम का तर्जुमा क्या है, खातमुन नबिय्यीन का तर्जुमा क्या है, फलां का तर्जुमा क्या है, फलां का तर्जुमा क्या है, वो बाद में बताएंगे। अभी सांस लो, रुको, पहले मिर्जे कादियानी को लखी तवाइफ के कोठे से तो नीचे लाओ। वो कोठे पर चढ़ा हुआ है, आज उसने पूरी किताब लिखी है मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी। वो तुम्हारा मसीह लखी तवाइफ के कोठे पर मुजरे देख रहा है, उसको पहले नीचे लेके आओ। जब वो नीचे आ जाएगा फिर बात करेंगे तुमसे, समझ आई कि नहीं? रेहान भाई मैं गलत तो नहीं करता कोई? माइक आपका म्यूट है। नहीं, आप तो एकदम ठीक करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं और इनके साथ होना ही ऐसे चाहिए। अल्लाह आपको मजीद जिंदगी दे, इस्तकामत दे और आप इसी काम पे मैं असल में चाहता ये हूँ कि उनसे बात ही इस तरीके से हो। हाँ, बाकी उनके जो जाहिल लोग हैं वगैरह, जो डिबेटर नहीं है, आम बंदे, उनको समझाना चाहिए। लेकिन ये तो एक अपनी तावीलें बना रहे होते हैं ना कि इनसे कुरान पे बात करो, आयत पे बात करो। वो कहते हैं खातम से मुराद मोहर है। मतलब ये देखें, मतलब खामोश भाई, रेहान भाई, असम्बली के अंदर असम्बली की कार्रवाई देखी है आपने? जी देखिए काफी बार। जी ये देखें, कौमी असम्बली की मुसद्दका रिपोर्ट मौलाना लफ्ज़ आया साहब की, ये 5 जिल्दें आ चुकी हैं, ये पहली जिल्द मेरे पास है। जो डिबेट हुई थी कादियानियों के साथ तकरीबन 21-22 दिन ये चला है टोटल सारा, लोरियों के साथ भी और मिर्जा नासर के साथ। कोई एक आयत मुझे निकाल के दिखा दें कि वहां पे अटार्नी जनरल ने मिर्जा मसरूर से ये सवाल किए थे कि फलां कुरान की आयत का तो ये तर्जुमा है, तो ये लफ्ज का ये तर्जुमा है, तो लिहाजा तुमने तर्जुमा गलत किया है तो तुम्हें हम काफिर करार देते हैं। ये बात हुई थी। तो एक आयत नहीं मिलेगी आपको वहां पर। तो ये डिस्कस हुआ था कि मिर्जा कादियानी अपने आप को अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का बेटा कह रहा है, अल्लाह की बीवी कह रहा है, वो 1,24,000 पैगंबर रसूल बन रहा है, खुद वो जानी था, शराबी था, रंडी बाज था, वो तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। तुम जिसको इतने बड़े रुतबे दे रहे हो और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तौहीन कर रहे हैं। तो ये बातें डिस्कस हुई थी। अच्छा, जो असम्बली के अंदर डिस्कस हुआ था, हमारे ये जो डिबेटर्स हैं उसको डिस्कस नहीं करते। बड़ी अजीब सी बात है यार। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी असम्बली की कार्रवाई के ऊपर रखी हुई है। असम्बली में जो कुछ डिस्कस हुआ था मैं वो ही डिस्कस करता। मेरी पूरी जिंदगी इसके ऊपर गुजरी है और आगे भी इंशाल्लाह ताला असम्बली की कार्रवाई के ऊपर ही ये मेरी जिंदगी गुजरेगी। अगले कॉलर को आसफ भाई, आसफ मौजूद हो? जी मैं मौजूद हूँ जी, मौजूद हूँ मैं। नहीं और दूजे आसफ अबू हुसैन। अच्छा, अबू हुसैन भाई। अच्छा, अबू हसन मौजूद है?
ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕਾਲਰ ਲਵੋ ਅਗਰ ਲੈਣੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਾਲਰ ਬੜਾ ਬੈਠਾ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। हजरत मैं नीचे बैठा ਭਾਈ हूँ। ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੀਗਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਕਾਲਰ ਲਵੋ। ਜੀ बेहतर, जी बेहतर। साथी जो नीचे जिन्होंने कॉल डाली है ना, कोशिश ये करें कि या तो अहमदी हजरात में से कोई आ जाए या मिर्जा जूनियर जेलमी के हवाले से अगर किसी ने बात करनी है तो वो आ जाए। जी मियाँ मसरूर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैंने सलाम किया 2 दफा, मैं क्या मैं वालेकुम सलाम नहीं कहा किसी ने, इसलिए मैंने दोबारा जरा मैंने कहा सलाम वालेकुम का जवाब दिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं मुफ्ती साहब। मुझे तो यकीन करें, मैं सुनता रहता हूँ इनको बैठ के नीचे ज़्यादातर। आज मैं ऊपर इसलिए आया हूँ कि ये दुनिया की सबसे गलीज दुनिया की इस दुनिया की सबसे गलीज अगर कोई कौम है ना तो ये कादियानी हरामजादे पिग्स हैं, सूअर के बच्चे सारे के सारे। उसमें जो इनको सपोर्ट करता है ना, जो इनको सपोर्ट करता है मुफ्ती साहब, मैंने आपको वो भी 100% हरामजादे मेरी नज़र में जो है। मैं आपको बताने लगा हूँ, आज से कोई तकरीबन 40 साल पुरानी बात सुनाने लगा हूँ। जर्मनी में मैं होता था उस वक़्त, तो जर्मनी में ये लोग क्या करते थे, हम उसमें हमारे अपने लोग भी ना मिर्ज़ा कादियानी के नाम पर उधर जाके तो पॉलिटिकल अजाइलम स्टे लेते थे उधर ना जाके। तो मैं बड़ा मना करता था उनको, मैं कि यार गुनाह कबीरा में है ये ना करो प्लीज़, बड़ा सख्त गुनाह है ये। लेकिन वो कोई नहीं मानता था। फिर मैं पाकिस्तान एक दफ़ा गया तो मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब से मेरी मुलाकात हुई उधर। वो हमारे कोई फैमिली रिलेशंस हैं, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुक थे। तो वो एक दिन खाना खा रहे थे हम, मेरे कजन्स के घर ना खाना खा रहे थे हम, तो उधर फिर मैंने इनसे पूछा। ताज़ा तरीन खबर यार जी लो जी, ताज़ा तरीन खबर। एक मिनट रुकिया जे जरा, रुकिया जे, नवा पंगा पै गया जे भाई, और नवा पंगा पै गया भाई। अल्लाह रहम करे की पै गया पंगा पै गया भाई। तबलीग हजरत मसीह मौद दी तबलीग समाना ते पहुंच गई है। ओहो बल्ले भाई यार, कैमरा सिद्ध पदरा मिरर किंजो ने। चलो फिर गुजारा कर लिया जे, कैमरा वैसे सही नहीं। तो जी वीडियो एक बंदे ने भेजी है, ये जनाब देखें इंग्लैंड के अंदर कादियानियों ने अपना अस्पताल लगाया था और किताबें रख के चौक के ऊपर वो कोई सेल सूल कर रहे थे। तो पुलिस आई है, उन्होंने डंडे सोटे मार के उन्होंने नस जाओ इथों, बंद हो जियो। हाँ जी, हेलो जी, तबलीग बढ़ गई जनाब। ऐ सुनिया जे जरा, ऐ वेखो तबलीग बढ़ गई जे जनाब। हेलो ऐ गई जे तबलीग जी। मैं कोई गल करन लगा सा मुफ्ती साहब, तबलीग बढ़ गई है। चलो तुसी इधरों फारग हो जाओ, फिर मैं तुहानू दसना। एक मिनट जरा मैनू रिकॉर्डिंग च लियान दियो सब कुछ, रिकॉर्डिंग च लियान दियो। हेलो जी, तबलीग ओ पई जे, हेलो ए जिहाद ओ मसीह मौत बढ़ गया जे भाई, मसीह मौत बढ़ गया। हेलो ए पईयां जे मिलदे दियां किताबां, हेलो नवीं सुन। आए हाय बल्ले बल्ले भाई, बल्ले बल्ले भाई बल्ले, सुभान अल्लाह। तबलीग बढ़ गई जी। ओ पई जे तबलीग जिदा कमर च इन्हां नूं जाके सवाल होना है, तबलीग की थी भाई जी ने। तबलीग नहीं हैगी, कंजरखाना है, इन्हू कंजरखाना कहंदे ने। तुसीं तबलीग कहंदे हो, मैं कंजरखाना कहना इन्हां नूं। मैं तुहानू सुना रहा सा गल है कोई जी कि मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब नाल फिर मुलाकात हुई ना जो मेरी, तो मैं उन्होंने दसिया कि जी साडे लोग जिहड़े ने अपने मुसलमान वो भी जाके ते मरज़इयां दा स्टे लैंदे ने, मिर्ज़ा कादियानी पिग दा जो है ना वो स्टे लैंदे ने। तो उन्होंने बारे च कुछ मैंने दसो की कीता जा सकता है। वो कहने लगे जी भूल कर भी
भूल कर भी गलती से भी किसी ने मिर्जे कादियानी पिग का स्टे लिया, वो उसी के साथ उठाया जाएगा आखिरत में, उसी के साथ काफर हो गया, उसी उठाया ही उसी के साथ जाएगा जी। वो साफ उन्होंने कहा है ना। तो बस वो मेरे कहने का मतलब है कि ये वो कौम है जो कि बहुत ही गलीज किस्म, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है ना पाकिस्तान का, तो वो ये कादियानी पिग्स हैं, हरामजादे कादियानी पिग्स। ये दुनिया के हर मुल्क में जाके पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते भी हैं कुत्ते की तरह और बकवास बड़ी करते हैं। अल्लाह इनको गारत करे परवरदिगार, जो जो इनको सपोर्ट करते हैं ना अल्लाह उनको भी गारत करे साथ, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने बड़ा ये जो भी आपने दिखाई है ना वीडियो मुफ्ती साहब, ऐसी ये कह लें कि मैंने इनके बड़े स्टॉल जाके ना उधर तोड़े हुए हैं जर्मनी में, बेसाब स्टॉल इनके लगाते थे, मेज लगा के किताबें लोगों को बांटने के चक्कर में थे, मैं जाके सब कुछ उठा के फेंक देता था। तुम्हारी मैं क्या ऐसी की तैसी गंदी और गलीज किस्म की कौम है ये मरज़ई कुत्ते साले। अच्छा ठीक हो गया एंजवे साहिबान के अज वास्ते इन्ने ही काफी है यार, बड़ी बराड़ हो गई है भाई, ते मैनू इजाजत दियो भाई साहिबान। हाँ जी, ते इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलांगे। प्यार मुहब्बत वालियां दा बहुत शुक्रिया भाई, जेडे तुहाडे सारे मुंडे हो प्यार मुहब्बतां वाले, अल्लाह तुहानू जज़ा देवे, अल्लाह तुहाडी खैर फरमाए, अल्लाह तुहाडी आल औलाद दी खैर फरमाए, अल्लाह तुहाडे रिज़्क़े लाल च बरकत अता फरमाए, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती आमीन 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 सुम्मा जेड़ा भी आमीन मिर्जे सुम्मा कज़ाब दे उत्ते आमीन लानत सुम्मा पांदा है, जेड़ा भी ऐसे गंदियां नू गंदा करदा है, ए सारियां दुआवां उन्हां वास्ते, सब दुआवां उन्हां वास्ते। जी अल्लाह जी भाई जी तुहाडी जी। खैर फरमाए, रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कादियानिया ते लानत कादियानिया